بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے عارف خان اور آپ دیکھ رہے خان پتن ٹی. آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر 1 comportamenti da tenere یعنی مطلب comportamenti da tenere verso gli utenti deboli della strada یعنی مطلب comportamento برتاؤ da tenere ہمیں کس طرح رکھنا ہے verso gli altri utenti جو اور لوگ ہے راستے کو یوز کرنے والی دیبولی کا مطلب ہے کمزور della strada جو راستے کے کمزور لوگ ہیں ہمیں اسے خیال کرنا ہے ہمیں اسے دھیان دینا ہے ہمیں اسے حق دینا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر معذور لوگ ہو گیا, معذور لوگوں کو آنے یا لے کر جانے والوں لوگوں کے لیے ہمیں احتیاط کرنا ہے, اس کو راستہ دینا ہے, اس کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے. صحیح ہے. اور بوڑھے جو ہے اس کو ہمیں خیال کرنا ہے, دیکھنا ہے. تو اس میں خاص و خاص ہم پڑھیں گے یہ معذور لوگوں کے بارے میں. diversamente abili کا مطلب ہے معذور لوگ, جو معذور ہوتا ہے پاؤں پر ہاتھوں پر جو شل بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جس طرح میں روٹین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے پاس بال پین اور کاپی رکھا کرے, تو یہ لفظ جو ہے اپنے پاس نوٹ کرے, diversamente abili. صحیح ہے. تو یہ مشکل الفاظ ہے, آپ کو اسی طرح سمجھ آئے گا آسانی سے. تو بڑھتے ہیں. سوال نمبر 1 میں کہتا ہے کہ bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone diversamente abili. اس سوال میں کہہ رہا ہے bisogna usare ہمیں یوز کرنا ہے, ہمیں احتیاط کرنا ہے, ضروری ہے ہمیں احتیاط کرنا ہے, ضروری ہے ہمیں احتیاط استعمال کرنا ہے. maggiore زیادہ سے زیادہ, prudenza nei confronti prudenza کا مطلب ہے nei confronti ترجیح دینا, خیال کرنا, confronti اس کے سامنے, delle persone جو بندے ہوتے ہیں, diversamente abili جو کمزور لوگ ہوتے ہیں, جو معذور لوگ ہوتے ہیں, اس کے سامنے ہمیں پروڈینزا اس کو حق دینا ہے اور اس کے ساتھ آسانی پیدا کرنا ہے, کیونکہ وہ معذور ہے. اگر ہو سکے ہمیں اس کو پہلے راستہ دینا چاہیے. اگر وہ سڑک پار کرتا ہے یا راستے پر جا رہا ہے تو ہمیں اسے پہلے چھوڑنا چاہیے. تو سوال نمبر 1 ہے ہمارا ویرو. صحیح ہے. diversamente abili کا مطلب ہے معذور لوگ. سوال نمبر 1 ہے ویرو. سوال نمبر 2 ہے bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone anziane. اس سوال میں کہہ رہا ہے bisogna ضرورت ہے, usare استعمال کرنا, maggiore کا بھی مطلب ہے زیادہ, prudenza خیال, nei confronti ان لوگوں کے سامنے, delle persone anziane جو بوڑھے ہوتے ہیں. delle persone کا مطلب ہے بندے اور anziane کا مطلب ہے جو بوڑھے ہوتے ہیں. صحیح ہے. anziane اٹالین کو کہتا ہے بوڑھے. تو یہ سوال بھی ہمارا ہے ویرو, کیونکہ آپ کو اگلے سوالوں میں ہم پڑھیں گے کہ ایک بوڑھوں کے ساتھ 2 قسم کے وہ بھی ہوں گے, بستونے یعنی مطلب جو ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا, وہ ہمسا جو بولتا ہے اردو میں, جو بوڑھے بندے اس پہ چلتے ہیں. تو وہ 2 قسم کے ہوں گے. صحیح ہے. اس تصویر میں دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے. یہ اس پیج میں بھی میرے خیال میں ایک سوال ہے, تو اس کا اس بستونے کا تو کم از کم آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ بستونے کیا ہے. یہ بستونے ہے. صحیح ہے. یہ جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتا ہے بستونے. بستونے کا مطلب ہے سردوچیکو کا مطلب ہے کہ نہ دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے, اور non vedente کا مطلب ہے کہ اسے نظر نہیں آتا. صحیح ہے. جس کے پاس یہ سفید والا صرف یہ بستونے, یہ ڈنڈا ہوگا نا ہمسا, تو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کو صرف نظر کام نہیں کر رہا ہے, اس بندے کا صرف نظر کام نہیں کرتا. اور یہ سردوچیکو کا مطلب ہے جس کے پاس یہ سرخ اور سفید والا دونوں اسی طرح ایک یہ بستونے ڈنڈا ہوگا, تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ بندہ نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے. صحیح ہے. اگر سفید ہوگا تو صرف نہیں دیکھ سکتا, اور اگر ڈبل اس طرح ہوگا سفید اور سرخ, تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ بندہ نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے. تو اس کے سامنے آپ نے بہت دھیان سے جانا ہے, اور نہ اس کے سامنے آپ نے سپیڈ مارنا ہے کہ یہ گھبرا جائے. صحیح ہے. تو
सवाल में ये कह रहा था कि ये इसलिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको पता हो। अनजाने का मतलब है बंदे बूढ़े। सवाल नंबर 2 भी है vero। सवाल नंबर 3 है bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei bambini che attraversano la strada। इस सवाल में कह रहे bisogna usare, हमें ज़रूरत है कि यूज़ करे, इस्तेमाल करे, maggiore ज़्यादा, prudenza ख्याल, तरजीह, nei confronti उन लोगों के सामने, उन बच्चों के सामने, dei bambini, bambini का मतलब है बच्चे, के attraversano la strada जो रास्ते को क्रॉस करता है, उन बच्चों के सामने हमें बहुत एहतियात से ड्राइविंग करना है, उसके सामने बहुत सही आराम के साथ गुजरना है। सही है। अत्राविरसनो का मतलब है जो रोड को पार करता है। सही है। और बम्बीनी का मतलब है बच्चे। जब बच्चे रोड को क्रॉस करता है तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से जाना है। सही है। तो सवाल नंबर 3 भी है वेरो। सवाल नंबर 4 है bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti che dimostrano una guida incerta। इस सवाल में कह रहे bisogna usare, आपको ज़रूरत है कि इस्तेमाल करें maggiore ज़्यादा, prudenza ख्याल और तरजीह और ध्यान, nei confronti उन लोगों के सामने, dei conducenti वो उन लोगों, उन ड्राइवरों के सामने, conducenti का मतलब है ड्राइवर के dimostrano जो आपको नजर आता है, una guida incerta जो एक ड्राइविंग करता है जो सिक्योर नहीं होता, कभी गलती करता है, कभी क्या करता है, और उसका ड्राइविंग सिक्योर नहीं है। तो आपको बहुत एहतियात से जाना है, उससे पीछे या जाना है या आगे जाना है। सही है। उन लोगों को आपने बहुत एहतियात देना है। सही है। उसने आपने अपने आप को बचाना है उन लोगों से। तो ये सवाल भी है वेरो। इसमें ये माजूर है वही ज़्यादा, और प्रुडेंजा जो है एहतियात है। इंचेरता का मतलब है कि वो सही नहीं होता, वो दुरुस्त नहीं होता। सही है। अगर आपको किसी पे शक आ जाए कि ये बंदा या नशे में है या इसको ड्राइविंग नहीं आता, तो उससे या आगे जाए या पीछे जाए, उसके साथ नज़दीक भी ना जाए। डिमोस्ट्रनो जो आपको नजर आता है। सही है। ग्वीदा का मतलब है ड्राइविंग करना। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di veicoli adattati per persone diversamente abili। इस सवाल में कह रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उन लोगों को भी आपने ध्यान देना है जो माजूर बंदे आकर और लेकर जाता है। सही है। वीडियो की स्टार्ट में मैंने आपको डिफिनेशन तारीफ में बताया था इस पेज के बारे में। तो इस सवाल में कह रहे हैं कि bisogna usare हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है maggiore prudenza ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात, nei confronti उन लोगों के सामने, dei conducenti वो ड्राइवर, di veicoli adattati जो गाड़ियां और बंदे जो होते हैं, per persone diversamente abili जो माजूर लोगों के लिए होता है, जो उसको अस्पताल लेकर जाता है और वापस लेकर आता है और उसका ड्राइविंग करता है उनकी गाड़ी का। तो उन लोगों के सामने हमें बहुत एहतियात के साथ जाना है, क्योंकि उनके साथ diversamente abili माजूर लोग होता है। सही है। ये गाड़ी उन लोगों का होता है। आदित्य का मतलब है मुलाजमीन। सही है। जो उर्दू में बोलता है मुलाजमीन, एक फैक्ट्री का या एक गवर्नर का या एक गवर्नमेंट का वो आदित्य मुलाजमीन को कहता है। सही है। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। ये लास्ट सवाल वेरो है। इसके बाद हमारे और जाएंगे शुरू फाल्सो। तो ये सवाल में कह रहे हैं कि bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone in bicicletta e di quelli con scarsa capacità di movimento। इस सवाल में कह रहे bisogna usare maggiore prudenza हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करना चाहिए nei confronti delle persone उन लोगों के सामने in bicicletta जो साइकिल पर होता है, ए इन दी क्विली और वो लोग con scarsa capacità di movimento जो साइकिल पर होता है, और वो लोग कभी राइट साइड जाता है कभी लेफ्ट साइड जाता है और आपको सही भी नजर नहीं आता, और उसका मूविंग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना या आगे बढ़ना वो सही नहीं है। तो आपको bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone in bicicletta e di quelle con scarsa capacità di movimento। अच्छा, scarsa
scarsa capacità का मतलब है जो उस आपको सही नजर नहीं आता हो या उसका सही ताकत नहीं होता चलाने को, तो साइकिल उससे कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड जाता है, तो आपको उन साइकिल वालों को बहुत एहतियात से देखना है। सही है, तो इसका सवाल तो वही नॉर्मल है। और ये बिचिक्लिता जो है ये साइकिल को कहता है। एदी क्विल्ली, क्विल्ली का मतलब है वो लोग con scarsa capacità जो उसका ताकत नहीं होता, उसका ज्यादा तजुर्बा नहीं होता चलाने को या ताकत नहीं होता चलाने को साइकिल, उन लोगों के सामने आपने बहुत एहतियात से करना है क्योंकि पीछे से आप उसको टक्कर भी लगा सकते हो। मूवमेंट का मतलब है जो राइट साइड या लेफ्ट साइड जो हिलता है। सही है, तो इधर तक सवाल हमारे थे वेरो। अभी हमारे सवाल हो गए, ये 5 सिर्फ सवाल है इसके फाल्सो। सही है, फाल्सो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो इस सवाल में कह रहे bisogna usare particolare prudenza nei confronti dei conducenti che hanno conseguito la patente di guida in uno stato estero। इस सवाल में कह रहे कि bisogna usare particolare, हमें ज़रूरत है कि हम ख्याल करें particolare prudenza, खास और खास। particolare का मतलब है खास, prudenza ख्याल, nei confronti उन लोगों के सामने, dei conducenti उन ड्राइवरों के सामने, che hanno conseguito कि उन लोगों ने हासिल किया है la patente लाइसेंस di guida ड्राइविंग की di uno stato estero जो बाहर मुल्क उसने लाइसेंस लिया हो, तो हमने उन लोगों के सामने बहुत एहतियात से ड्राइविंग करना है और उसको बचाना है। तो नहीं, ये फाल्सो है। stato estero का मतलब है मिसाल के तौर पर दूसरी मुल्क, तीसरी मुल्क के इटली से बाहर हो। सही है, एस्टेरो का मतलब है बाहर, इंटरनो का मतलब है अंदर। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो क्योंकि हम उन लोगों का कोई जिक्र ही नहीं है। स्टातो एस्टेरो जो और लोग जो बाहर मुल्कों से लोग आते हैं इधर इटली में और अपना गाड़ी ड्राइविंग करता है, तो इस सवाल में कह रहे हैं कि हमें उसको तरजीह देना है, हमें उसको ख्याल करना है। तो ये फाल्सो है। ऊपर हमने कभी किसी सवाल में भी नहीं पढ़ा कि जो बाहर से इटली में आ जाए हमें उसको ध्यान देना है, तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di autoveicoli elettrici। इस सवाल में कह रहे हैं कि bisogna usare maggiore prudenza, आपने ज्यादा से ज्यादा एहतियात करना है nei confronti उन लोगों के सामने, dei conducenti उन ड्राइवरों के सामने, di autoveicoli elettrici जिन ड्राइवरों के साथ गाड़ी इलेक्ट्रिक वाला हो, तो आपने उन लोगों को बहुत ध्यान देना है। ये सवाल है फाल्सो। सिर्फ हम उसको नहीं दे सकते, एहतियात नहीं कर सकते जिसके साथ गाड़ी इलेक्ट्रिक हो। इस सवालों में इलेक्ट्रिक का कोई जगह नहीं है, ये है फाल्सो। अगला सवाल है हमारा bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di taxi। इस सवाल में कह रहे हैं कि bisogna usare maggiore prudenza कि हमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें nei confronti। confronti का मतलब है उन लोगों किसी के सामने, उन लोगों के सामने, dei conducenti उन ड्राइवरों के सामने, di taxi जो ड्राइवर टैक्सी का होता है, टैक्सी ड्राइवर जो होता है हमें उसको एहतियात करना है, हमें उसे बचाना है, उसे तरजीह देना है। ये फाल्सो है, टैक्सी वाला खुद समझ सकता है अपने ड्राइविंग पे। सही है, तो सेकंड लास्ट सवाल है bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di tricicli a motore। ट्रिचिकली आ मोटोरे क्या है, इसको हमने पढ़ा भी था। सही है, तकरीबन 7वें 8वें लेसन में। ट्रिचिकली मोटोरी जो है ये रिश्के वाला, ये रिश्का है। सही है, ये उसका इंजन जो होता है इंजन वाला रिश्का, ट्रिचिकली मोटोरी जिसके 3 टायरों हो और साथ में इंजन भी हो, उसको कहते हैं ट्रिचिकली आ मोटोरी। ये कह रहे हैं कि bisogna usare maggiore prudenza, हमें ज्यादा से ज्यादा ख्याल करना है उन लोगों के सामने, nei confronti dei conducenti उन ड्राइवरों के सामने, di tricicli a motore हमें रिश्के वाले के सामने बहुत एहतियात से देखना है। तो ये सवाल है फाल्सो क्योंकि रिश्के वाला का जिक्र ऊपर वेरो सवालों में है ही नहीं। तो लास्ट सवाल है हमारे पास bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei pedoni muniti di
bastone bianco, ma non di quelli con bastone bianco e rosso. अच्छा जी, बस्तोने क्या है? वो मैंने जो हमसा आपको बताया, डंडा जो बूढ़ों वाला होता है, वो सवाल एक ही इसमें सिर्फ है, वो भी फाल्सो है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि bisogna usare maggiore prudenza, हमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात करना है nei confronti उन लोगों के सामने, dei pedoni वो पैदल लोगों के सामने, muniti di बस्तोने बियांको जिसके साथ सफेद वाला बस्तोने हो, डंडा हो, हमसा हो। बस्तोने का मतलब है डंडा और बियांको का मतलब है सफेद। मानोन क्विली दिकुन बस्तोने बियांको और रोसो, और हमें सिर्फ ध्यान देना है जिसके पास बस्तोने बियांको हो, जिसके पास हमसा सफेद वाला हो, हमें सिर्फ उसको ध्यान देना है। मानोन दी क्विली कुन बस्तोने बियांको रोसो, और वो उनको हमें ध्यान नहीं देना चाहिए जिसके साथ बस्तोने जो है वो डंडा जो है हमसा सफेद और रेड कलर हो, तो हमें उसको ध्यान या एहतियात नहीं देना है। तो ये सवाल है फाल्सो। हमें दोनों को और बूढ़ों लोगों को और दिविरसमिंतियाबिली को, माजूर लोगों को, सबको हमने गाड़ी वाला ने पहले उनको हक देना है। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। पेज नंबर 50 ये मुकम्मल हो गया। पेज नंबर 51 हम इसमें पढ़ेंगे, सही है। तो पेज वही, चैप्टर वही नंबर 1 है, और इसमें हम पढ़ेंगे comportamenti da tenere verso le persone muniti di bastone bianco non vedente o bianco rosso sordo ciechi। अच्छा जी, सवाल ये कह रहे comportamenti जो बर्ताव है da tenere verso persone, और जो हमने कैसे रखना है उन लोगों को muniti da bastone जिसके साथ ये हमसा हो, bianco सफेद वाला, non vedente जो नहीं देखता, o bianco रोसो जो नहीं देखता उसके और नहीं सुनता, उसके साथ सफेद वाला और रोसो वाला दोनों होंगे। यानी मतलब रेड और वाइट जो है वो जो नहीं सुनता और नहीं देखता उनके साथ होगा, और जो सिर्फ नहीं देखता उसके साथ सफेद होगा, सही है। सुर्दो चीको का मतलब है जो ना सुनता है और ना देखता है, सही है। पेज नंबर 51 इसमें हम पढ़ेंगे, और इस वीडियो में इंशाल्लाह सिर्फ ये एक ही पेज, दूसरा भी 50 और 51, सिर्फ ये 2 पेज हम कवर करेंगे, सही है। अच्छा, तो फिर मैं आपको एक तस्वीर बता दूं वही वाला बस्तोने वाला, कि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए, सही है। ये जो है हमारे पास बस्तोने हैं। बस्तोने वो चीज है जो बूढ़े बंदे यूज करते हैं चलने के लिए, टेक लगाने के लिए, ये 2 है, सही है। ये सफेद नॉन विदेंते, नॉन विदेंते का मतलब है ये विदेरे का लफ्ज है, सही है, देखना। नॉन विदेंते का मतलब है कि वो नहीं देख सकता, सही है। और सुर्दो चीको का मतलब है कि वो ना सुन सकता है और ना देख सकता है, तो उसके साथ ये सफेद और ये सुर्ख वाला होगा। और जो सिर्फ नहीं देख सकता और कानों पे सुन सकता है उसके साथ सफेद होगा। तो बस्तोने बियांको, और इसका नाम है बस्तोने बियांको ए रोसो, सही है। आपके लिए आसानी के लिए भी मैंने तस्वीर आपको बताया। तो बाकी तस्वीर बाद में भी देख लेंगे, और ये सवाल पढ़ते बड़े हैं लेकिन मैं आपको गारंटी दे देता हूँ ये बहुत आसान है, आपको मजा दे देगा, लेकिन थोड़ा सा ख्वारी कर दे, सही है। सवाल नंबर 1 है कि il conducente deve fermarsi e dare la precedenza al pedone non vedente con il bastone bianco che si accinge ad attraversare la strada fuori della strisce pedonali। इस सवाल में कह रहे il conducente deve fermarsi, ये जो ड्राइवर है उसे रुकना चाहिए, e dare la precedenza और हक देना है, al pedone non vedente वो पैदल जाने वाला जो नहीं देखता, कुन il bastone bianco जिसके साथ सफेद वाला हमसा है, चलने वाला डंडा, कैसी अचिंगे वो जो हरकत करता है रवान होने के लिए, अद अत्रविरसारे रास्ते को पार करने के लिए, लस्त्रादा फूरी दी लस्त्रीशे
pedonali, वो जो अगर इस सवाल में कह रहा है अगर एक बूढ़ा जिसके साथ ये सफेद बियांकों वाला डंडा हो, सही है, अगर आप उसको देख ले कि वो स्त्रीशे से बाहर भी है इस pedonali, सही है, जिधर स्त्रीशे pedonali हो, अगर वो बंदा उधर से बाहर भी हो और हरकत करे कि वो सड़क को पार करे, सही है, तो आप जो ड्राइवर हो उसको फिर मारे, देवे फिर मारे, उसे रुकना चाहिए, ड्राइवर को रुकना चाहिए कि वो बूढ़ा आराम के साथ चला जाए, कि वो ना डर जाए और ना कोई उसको तकलीफ पहुंच जाए, सही है। तो ये सवाल है हमारे पास vero. सवाल नंबर 2 में कहता है कि il conducente deve fermarsi e facilitare attraversamento al pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la strada fuori delle strisce pedonali. इस 2 नंबर सवाल भी वही तरह एक जैसा है, सही है। और ये अचिंगे का मतलब है कि आप रेडी हो रवान होने के लिए, जिस तरह आप रवान हो जाते हो। फिर मार्सी का मतलब है रोकना, दारे का मतलब है देना, पेदोने का मतलब है पैदल जाने वाले, नॉन विदेंते का मतलब है कि नहीं देखता, सही है। और अचिंगे का मतलब है जब तैयार हो रवाने के लिए तैयार हो, सही है। तो ये सवाल भी हमारा वेरो है। और 2 नंबर का तशरी है कि il conducente deve fermarsi, ये जो ड्राइवर है उसे रोकना चाहिए, e facilitare attraversamento, और आसानी पैदा करे सड़क उबूर करने के लिए, al pedone non vedente, जो पैदल बंदा है, नॉन विदेंते जो नहीं देखता, con il bastone bianco, जिसके साथ सफेद वाला डंडा हो, के attraversa la strada, जो रास्ते को पार करता है, fuori delle strisce pedonali, जिधर पैदल चलने वालों का स्त्रीशे होता है। अगर वो उस स्त्रीशे से लाइन से बाहर भी हो, अगर आप समझे कि वो जा रहा है या सड़क को पार करता है, तो आपने रोकना है, सही है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। उसके साथ आसानी पैदा करना है कि आप दूर से खड़ा हो जाए कि उसको कोई मसला या घबराहट ना हो। ये facilitare का मतलब है आसानी पैदा करना, attraversamento का मतलब है रास्ते को एक साइड से दूसरी साइड को पार करना। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 3 है il conducente deve dare la precedenza al pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la strada fuori delle strisce pedonali, anche se non accompagnato da un cane guida. un cane guida क्या है? काने का मतलब है, ये काने का मतलब है कुत्ता, और गुइदा का मतलब है ड्राइविंग करना। यानी मतलब आपने भी देखा होगा कि इस बूढ़ों के साथ या बूढ़ियों के साथ कुत्ता होता है, वो आगे होता है और उसके पीछे वो बूढ़ा होता है, लेकिन वो कुत्ते को रास्ता मालूम होता है, ये उसको अकम्पनियामेंटो का मतलब है कि उसको लेकर जाता है, कुत्ता वो बूढ़े को लेकर जाता है, सही है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि गुइदा दी काने, इसका मतलब है कि कुत्ता आगे होता है और उसके पीछे बूढ़ा होता है, क्योंकि बूढ़े को नजर या उसका कान काम नहीं करता, कमजोर होता है। तो इसका तशरीह है कि il conducente deve dare la precedenza, जो ड्राइवर है उसे हक देना है, al pedone पैदल वाले को, non vedente जो नहीं देखता, con il bastone bianco जिसके पास ये डंडा जो है ये हमसा सफेद कलर हो, attraversa la strada जो रास्ते को पार करता है, fuori delle strisce pedonali जिधर पैदल चलने वालों का लाइनें होते हैं, anche se non accompagnato अगर उसके साथ कुत्ता नहीं भी हो, da un cane guida जो उसके साथ काने भी नहीं हो और वो कुत्ता भी नहीं हो और वो अकेले जो है रोड को पार करना चाहे, तो आपने उसके साथ आसानी पैदा करना है, उसको पहले हक देना है कि वो गुजर जाए, फिर आपने जाना है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 4 है il conducente deve fermarsi per concedere la precedenza al pedone sordo-cieco che con il bastone bianco rosso attraversa la strada fuori delle strisce pedonali। इस सवाल में कह रहे हैं कि
Il conducente ये जो ड्राइवर है deve fermarsi per concedere, जो ड्राइवर है वो उसको रोकना चाहिए और ये ख्याल रखना है la precedenza, हक देना है al persone, concedere ये सोच रखना, la precedenza हक देना है al persone sordo chico का मतलब है कि ना देखता है और ना सुन सकता है, सही है। sordo chico का मतलब है जो बंदा ना देख सकता है और ना सुन सकता है। के con il bastone bianco rosso, जिसके साथ वो डंडा हमसा रोसो और बियांको होगा, यानी मतलब सफेद कलर वाला और सुर्ख कलर वाला होगा, तो वो सुर्दो चीको है, वो ना सुनता है और ना देखता है, सही है। attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, अगर वो रास्ते को पार करना चाहे आपने रुकना है और उसको गुजर देना है पहले, क्योंकि अगर वो लाइनों से पीछे भी है लेकिन पहले उसको जाना चाहिए। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है il conducente deve dare la precedenza al pedone con il bastone bianco o bianco rosso che attraversa la strada, anche se è fuori dalle strisce di un attraversamento pedonale। अच्छा जी, इसमें कह रहे सवाल में कि il conducente deve dare la precedenza, ये जो ड्राइवर है उसे हक देना है al pedone con il bastone bianco, जो पैदल होता है जिसके साथ हमसा सफेद कलर वाला, ओ का मतलब है या bianco rosso que attraversa la strada, और या उसके साथ सुर्ख कलर वाला और सफेद कलर वाला हो कि attraversa la strada, जो रोड को पार करता है, रास्ते को पार करता है। anche se è fuori delle strisce, अगर वो लाइनों से बाहर भी है, di un attraversamento pedonale, जिधर से पैदल चलने वालों का लाइनें होती है, अगर ये बूढ़ा उससे पीछे भी हो जिसके साथ ये डंडा सफेद और सुर्ख कलर वाला होगा, तो आपने पहले से ही रोकना है, क्योंकि वो ना देख सकता है और ना सुन सकता है, क्योंकि उसके साथ डबल कलर वाला होगा, बियांको रोसो सुर्ख वाला और सफेद कलर वाला, तो वो ना सुन सकता है और ना देख सकता है। अगर वो लाइनों से करे जाता से रास्ते से बाहर भी है तो आपने रुकना है, उसे गुजर जाना है, फिर आप चले जाए। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है हमारे पास il conducente deve fermarsi quando un pedone non vedente con il bastone bianco si accinge ad attraversare la strada, evitando di frenare bruscamente per non spaventarlo। अच्छा जी, सवाल में कह रहा है कि il conducente deve fermarsi quando un pedone, ये जो ड्राइवर है उसे रुकना चाहिए जब एक पैदल नॉन वेदेंते, जो नहीं एक पैदल चलने वाला, जो उसका नजर काम नहीं कर रहा, कुन इल बस्तोने बियांको, जिसके साथ सफेद कलर वाला हमसा है चलने वाला, सी अचेंगे, जब वो हरकत करे और रवान होने के लिए तैयार हो, ad attraversare la strada, और रास्ते को पार करने लगे, evitando de frenare, आप एहतियात करें, आप इस चीज से परहेज करें, evitando का मतलब है आप परहेज करें, di frenare bruscamente, के वो फ्रेनारे ब्रुस्कामेंटे का मतलब है कि अचानक से टाइट ब्रेक नहीं मारना है आपने, सही है। फ्रेनारे का मतलब है ब्रेक मारना, ब्रुस्कामेंटे अचानक या जबरदस्ती से ब्रेक आपने मारा फिर रेस मारा फिर ब्रेक मारा, आपने इसी तरह चीज नहीं करना है जिस तरह रेसों में करना है। फिर नॉन स्पाविंटार्लो, उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है, वरना वो उसके साथ आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, सही है। तो ये सवाल भी हमारा है इधर तक थे वेरो। अभी हमारे पास इधर से शुरू हो गए फाल्सो। तो फाल्सो नंबर 1 है कि il conducente deve accelerare per sgombrare rapidamente la carreggiata quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada senza cane guida। अच्छा जी, सवाल में कह रही है काने ग्वीदा पहले आया था ना, वो अलग था, ये सवाल अभी अलग है, वो वेरो था, ये फाल्सो है, सही है। il conducente deve accelerare per sgombrare,
अच्छा जी, ये जो ड्राइवर है उसको accelerare का मतलब है रेस देना, फिर sgombrare टायरों को, वो हवा टायरों से वो आवाज निकलवाना, rapidamente तेज तेज la carreggiata में तेज आप ब्रेक मार दे, सही है। accelerare ज्यादा रेस मारना, फिर sgombrare rapidamente जो carreggiata में तेज चला जाए, la carreggiata Quando un pedone जब एक पैदल चलने वाला non vedente जो नहीं देखता con il bastone bianco जिसके साथ ये हमसा होता है सफेद वाला attraversa la strada जो रास्ते को पार करता है senza cane guida जिसके साथ कुत्ता भी ना हो और वो देखता है, तो आपने वो accelerare आपने रेस मारना है, जिस तरह किसी को सामने वो चलता हो और आप उसके पीछे या आगे से आ जाए गाड़ी में तेज और उसके साथ ब्रेक मार ले, तो उसको कहता है फ्रीनारे फ्रेनारे बस्तों attraversare, ये वाला है सिंजा कान है, ये तो है ये वाला। sgombrare और accelerare का मतलब है कि रेस मारना और जो टायरों से आवाज निकलवाता है उसको कहते हैं sgombrare rapidamente तेज, rapidamente का मतलब है तेज, la carreggiata में, सही है। Quando un pedone जब एक पैदल non vidente जो उसको नजर नहीं आता, il bastone bianco जिसके साथ सफेद कलर वाला हमसा होता है, attraversa la strada जो रास्ते को पार करता है, senza cane di guida जिसके साथ कुत्ता भी ना हो, तो आपने जो है उसके सामने ब्रेक मारना है और ज्यादा रेस देना है कि वो कंफ्यूज हो जाए। तो ये सवाल है फाल्सो। इस तरह काम हम नहीं कर सकते। हमने वेरो सवालों में पढ़ा, बूढ़ों के सामने जिसके साथ हमसा सफेद वाला हो या सुर्ख वाला हो, हमें उसके सामने ज्यादा तेज ब्रेक भी नहीं मारना है और ज्यादा तेज जाना भी नहीं है। तो ये सवाल है हमारा फाल्सो। क्यों फाल्सो है कि ये कह रहा है अगर आप बूढ़े लोग देखो या उसको सुनाई या नजर नहीं दे रहा तो आप गाड़ी का रेस बढ़ा दे और गाड़ी के टायरों से आवाज निकलवा दे, तो ये फाल्सो है, सही है। अगला सवाल है हमारे पास, il conducente deve passare per primo in quanto alla precedenza quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada fuori delle strisce pedonali। अच्छा जी, ये हमें पहले बोलता था अगर ये पैदल वाला जो है ये बूढ़ा स्त्रीशे से बाहर भी होना तो आपने रुकना है। इस सवाल में कह रहे हैं कि आपने पहले जाना है, सही है। ये डायरेक्ट फाल्सो है। il conducente deve passare per primo, ये जो ड्राइवर है, आप ड्राइवर हो, मिसाल के तौर पर रास्ते पर जा रहे हो, देवे passare आपने पहले जाना है, फिर primo सबसे पहले आपने जाना है, इन क्वांटो आला प्रेसिडेंजा जब आपका हक हो तो आपने सबसे पहले निकलना है, क्वांडो उन पेदोने नॉन विदेंते जब एक पैदल वाला जाता हो और उसका नजर भी काम नहीं करता, उसको देखना नहीं आता, कुन इल बस्तोने बियांको जिसके साथ हमसा सफेद वाला होता है, attraversa la strada जो रास्ते को पार करता है, fuori delle strisce pedonali जो पैदल चलने वालों का लाइनें होते हैं स्त्रीशे सफेद, अगर उधर हो तो आप उससे पहले निकल जाए। तो ये फाल्सो है, हमें उधर ही रुकना है, पहले ये बूढ़ा जाएगा या हम बाद में हम जाएंगे, पहले बूढ़ा जाएगा। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। इसमें कह रहे हैं कि पसारे कि आप पहले जाए, फिर प्रीमो का मतलब है पहले, सही है। बाकी वही वाला लफ्ज है सारे, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है, il conducente quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali deve dargli la precedenza solo se attraversamento pedonale dista oltre 100 metri। अच्छा जी, ये कह रहा है कि il conducente quando un pedone non vedente, ये जो ड्राइवर है जब एक पैदल चलने वाला जा रहा हो और उसका नजर भी काम नहीं कर रहा हो, non vedente con il bastone bianco जिसके साथ सफेद वाला हमसा हो, attraversa la strada जो रास्ते को पार करता है, fuori delle strisce pedonali जिधर पैदल चलने वालों का लाइनें होते हैं,
करे जाता से बाहर, deve dargli la precedenza, उसको हक देना है, solo से ड्राइवर ने हक देना है, deve dargli यानी मतलब ड्राइवर ने हक देना है उस बंदे को, precedenza solo से अगर वो, solo सिर्फ, अगर सोलो का मतलब है सोलो और से का मतलब है अगर, सोलो से अगर वो attraversamento pedonale dista oltre 100 metri, अगर वो dista का मतलब है फासला, दूरी, सही है, कितना दूरी जो होता है फासला, ये उसको कहता है attraversamento, जो पैदल पार करता है। इस सवाल में कह रहे हैं कि अगर जो ये ड्राइवर जो है उसको जो है quando non vedente un bastone bianco attraversa la strada, जो रास्ते को पार करता है, जो जिसके साथ bastone bianco होता है, जो नहीं देखता, जब वो रास्ते को पार करता है, fuori delle strisce pedonali, जो रास्ते से बाहर हो, जो strisce से बाहर हो, deve dare la precedenza, ड्राइवर ने हक देना है, solo सिर्फ से अगर attraversamento pedonale, अगर ये पैदल बंदा जो है जो रोड को पार करता है, dista अगर वो दूर है, oltre 100 metri अगर वो 100 मीटर से दूर है, करे जाता से रोड पार करने वाले जगह से बहुत दूर है 100 मीटर, तो तब आपने उसको रास्ता देना है वरना नहीं देना है। तो ये 100 मीटर देकर ये फाल्सो है, सही है। ये नहीं है कि वो 100 मीटर तो होगा, हमें क्या पता है कि वो 100 मीटर है, 100 या 50 मीटर में हमारे साथ नजदीक है, बस हमें पता चल गया कि एक बंदा अनजानो बूढ़ा है या बस्तोने के साथ है, बियांको रोसो, हमें रोकना है, उसको जाना है पहले, बाद में हम जाएंगे, सही है। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, il conducente deve dare la precedenza a un pedone non vedente che attraversa la strada fuori della striscia pedonale solo se munito da bastone rosso bianco। इस सवाल में कह रहे हैं कि il conducente deve dare la precedenza, ड्राइवर को हक देना है a un pedone non vedente, जो एक पैदल चलने वाले को और उसका जो नजर भी काम नहीं कर रहा, che attraversa la strada fuori delle strisce pedonali, और रास्ते को पार करता है जिधर से पैदल चलने वालों का जो लाइनें होते हैं, strisce sole se munito, अगर उसके साथ हो, di bastone bianco rosso, तब आपने उसको हक देना है, जब उसके साथ बस्तूने बियांको और रोसो हो, आपने हक देना है वरना नहीं देना है। तो ये सवाल है फाल्सो। अगर बस्तूने सोलो बियांको, सिर्फ बियांको हो, और बियांको रोसो अगर दोनों भी हो, दोनों को हमने वो देना है प्रेसिडेंजा, यानी मतलब पहले उसका हक देना है, बाद में हम जाएंगे। तो ये सवाल भी है falso। सेकेंड लास्ट सवाल है हमारे पास, il conducente deve prevedere che un pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la strada fuori della striscia pedonale camminerà rapidamente e senza incertezza। इस सवाल में कह रहे हैं कि il conducente deve prevedere che un pedone non vedente, ये जो ड्राइवर है उसे पहले से ये सोच करना है कि एक पैदल चलने वाला जा रहा है जो उसका नजर काम नहीं कर रहा, con il bastone बियांको, जिसके साथ सफेद कलर वाला हमसा है, कि attraversa la strada fuori delle strisce pedonali, जो रास्ते को पार करता है जिधर स्त्रीशे या लाइनें होते हैं पैदल चलने वालों का, कमीनेरा वो जाएगा, रापिडamente तेज तेज, e senza incertezza बगैर कोई मसले। तो ये कह रहे हैं कि बगैर कोई मसले, यानी मतलब बगैर कोई मसले या बगैर यकीनी उसे जाना चाहिए। तो ये सवाल भी है फाल्सो, क्योंकि नॉन विदेंते आपने पहले से देखना है कि वो बस्तोने बियांको है या रोसो है, बस उसके साथ जो है बस्तोने हो तो हमने डायरेक्ट उसको हक देना है, क्योंकि उसका या तो नहीं देख सकता होगा और या नहीं सुनता,
تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو ڈاری کی پریچیدنزا حق دینا ہے کیونکہ وہ پیدل ہے اور ہم گاڑی میں ہے. صحیح ہے. تو اس میں جو ہے پریویدیرے آپ نے خیال رکھنا ہے, پہلے سے دیکھنا ہے. صحیح ہے. ویڈینتے جو وہ تیسرا بندہ ہے اور اس کا نظر بھی کام نہیں کر رہا ہے, il bastone bianco اس کے ساتھ سفید کلر والا ہمسا ہے کہ attraversa la strada della attraversa la strada fuori della strisce pedonali اور وہ پیدل چلنے والوں strisce سے بھی باہر ہو, caminerà وہ جائے گا rapidamente تیز e senza incertezza بغیر کوئی بھی یقینی یا صحیح سیکورو نہیں جائے گا. تو یہ سوال ہے فالسو, وہ تیز نہیں جائے گا, وہ سلو جائے گا. صحیح ہے. اس سوال میں کہہ رہے کہ rapidamente وہ تیز جائے گا, senza incertezza اس کا یقین بھی نہیں ہوگا, بغیر یقینی وہ جائے گا کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا نہیں. تو یہ سوال بھی ہے فالسو. صحیح ہے. ہمارے پاس ہے لاسٹ سوال سے un pedone con bastone bianco attraversa la strada fuori della strisce pedonale bisogna suonare il clacson per sollecitarlo ad attraversarle rapidamente. اس سوال میں کہہ رہے کہ جب آپ جا رہا ہو, صحیح ہے. اچھا جی, یہ اس میں کہہ رہے کہ rapidamente se un pedone con il bastone bianco attraversa la strada fuori della strisce pedonale اگر ایک پیدل چلنے والا con bastone bianco اور اس کے ساتھ سفید ہمسا ہو attraversa la strada fuori della strisce اگر وہ راستے کو پار کرنا چاہتا ہے اور لائنوں سے بھی باہر ہے, pedonale جدھر پیدل چلنے والے کا لائنیں ہوتے ہیں. bisogna suonare کا مطلب ہے بجانا, il clacson کا مطلب ہے ہارن, پپ ہارن. صحیح ہے. تو یہ سونارے کا مطلب ہے بجانا اور کلاکسن کا مطلب ہے ہارن. پھر سولیچیتار لو کہ اسے زور دے دے, اس بندے کو تنگ کر لے, ad attraversare rapidamente کہ وہ پار کرے راستے کو جلدی سے جلدی. تو یہ فالسو ہے. کیوں؟ ہمیں کسی کو بھی ہارن نہیں دینا چاہیے کہ وہ جلدی راستے کو پار کر سکے. تو یہ سوال بھی ہمارا ہے ویرو. پیج نمبر 51 بھی ہو گیا ہمارا کمپلیٹ, اور یہ پیج نمبر 52 جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پڑھیں گے لیسن میں, کیونکہ یہ ویڈیو پھر بہت بڑی ہو جائے گی. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کرے, سبسکرائب کرے اور آگے شیئر کرے ثواب کے لیے, کیونکہ اور لوگوں کا بھی اس سے فائدہ ہوگا. تو کم از کم آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. صحیح ہے. آپ کو بھی ثواب ملے گا, ہمیں بھی ثواب ملے گا, آپ کو بھی فائدہ ملے گا اور لوگوں کو بھی فائدہ ملے گا. تو بہت مہربانی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.